Actually, when I see this video, I really get charged up because I remember we were staying at the Marina Sand Bay, one of the top hotels in Singapore, and we were staying there, and it was outstanding. Now, guys, today I'm not the speaker, but we have somebody who's extraordinary, so I'm going to get him on the thing. But before, just let me introduce him. The list is so big on his qualification; it's mind blowing. I hope you can hear my voice. My voice okay? Hi guys, can you hear me? Okay, let me see if I can get you all on. Okay, I hope you all can hear me. Sound is perfect. I just want to know if somebody can chat and tell me if the sound is okay. Hi guys. Okay, I looks like the sound is okay. Shifra, is the sound okay? Okay, perfect, great. When I was seeing this video, I just had a rough idea on what our experience we had here. We went to our forever office in Singapore. Singapore जो हमारा ऑफिस था, वहां भी गए थे और हम लोग जो होटल में रुके थे, वो मरीना सैंड बे करके होटल था, जो 3 टावर था और टावर के ऊपर स्विमिंग पूल था. And because I have this habit of saying top of the world, top of the world. So for a change, मैं बोल रहा था top of the world, we're going to swim on top of the world. तो ये बहुत जबरदस्त था. अभी आज का जो स्पीकर है, मैं पहले उनको I'll try to get him on. If I can get Jiten first. Okay. So if I can get him first over here, 1 minute. Okay. I think he's not yet logged in. But ये जो था बहुत ये जो हमारा रैली था सिंगापुर में, और वहां से हम गए थे to see the different types of events and different types of places. Then we went to Disney World. तो बहुत अच्छे हम लोग जगह गए थे और ये बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था हमारा. तो जो एक्सपीरियंस हम लोग का सिंगापुर में था और जिस होटल में हम रुके थे, जस्ट द ब्रेकफास्ट, वहां का जो ब्रेकफास्ट था ओनली फॉर पर पर्सन वो 3000 रुपीज. तो आप सोच सकते हैं कि क्या धमाल किया हम लोग ने, क्या सेटअप किया था. और आई थिंक वी हैव Jiten Arora on. Yes, Jiten is come. So Jiten, I'm going to make you co-host. Fantastic. तो मैं जितेन को co-host भी बनाया है. But before I even get him, he is mind blowing. और आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये जो हम लोग जो बोलते हैं ना, बोल बचन नहीं करते, सच. एक और चीज बताना चाहता हूँ, the 3 people in his team in this corona time, जो पब्लिक यार रो रहे हैं, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके उनकी हालत खराब है, इस टीम में, इसके टीम में 3 persons have made more than 10 lakh rupees a month in corona time. तो ये जो आदमी है, he'll just tell you his story also. He's excellent, is very motivated, और बॉडी लैंग्वेज तो मेरे जैसे है उनका, तो बहुत अच्छा है. तो आपको भी ये आदमी को सुनना है, वेरी वेल सुनना है. क्यों? इनसे जो पॉइंट्स मिलने वाले, इसके जो टिप्स मिलने वाले, इनके टीम में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स इन फॉरएवर. तो मैं इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी करूंगा, इतना इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है, बट आई जस्ट टेल यू बिफोर, व्हाई ही जॉइंड फॉरएवर. बिकॉज ही वांटेड अ 6-figure इनकम. ही वांटेड टू अनलिमिटेड, कि कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए इनकम की, कि भाई 2 लाख मिलेगा, 50,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा. उसको अनलिमिटेड चाहिए था, क्योंकि ही वाज वेरी टैलेंटेड एंड ही वांटेड अ अनलिमिटेड इनकम. प्लस he wanted to travel the world. अभी travel the world बहुत जन करते हैं, but travel the world free. Travel the world free and stay in the best of hotels. अभी बहुत जन अलग अलग होटल में जाकर रुकते हैं, लेकिन एंड आने के टाइम में तो रोते रहते. तो you have to understand that this guy is too talented, and तो आप देख सकते हैं वो is already come, so we'll be welcoming him soon. But just tell you, he has no experience. उसका कोई network marketing, MLM जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चिच्ची MLM कोई एक्सपीरियंस नहीं था उसका. बट ही हैड अ एम, ही हैड अ विजन. तो आपको याद रखना है कि फॉरएवर में आके आपको एक विजन चाहिए, और ये विजन तो आपको रेडीमेड देती कंपनी आपको. ही हैज क्वालिफाइड 7 times. नाउ वन ऑफ द इंसेंटिव जो नए लोग हैं, शायद मालूम नहीं होगा, वन ऑफ द इंसेंटिव्स इज ईगल मैनेजर रिट्रीट.
EMI, EMR. He has qualified 7 times, not 1 time, 7 times. He has qualified twice in a row. एक के बाद एक फॉर चेयरमैन बोनस, जैसा हम लोग इंडिया में बोलते हैं दिवाली बोनस। आप सोचो ये टाइम में दिवाली बोनस कौन सी कंपनी आपको देने वाली है? सबकी हालत खराब है। हम लोग ने इस साल में भी दिवाली बोनस दिया है। It's 140 crores we have given in this time. So it's fantastic. In his team, many people have qualified. I mean, मैं ये सब नहीं बोलूंगा. We'll have him saying, and he's among the top 20. Top 20 जो cream of forever है India. He's the top 20, and he's qualified for many managers retreat, many events, car plan. And मैं सुना है अभी recently उसने car plan 3 भी लिया है. So I will not take much time, and I'll invite you. जितेन जी नमस्ते। All right, नमस्कार जी, नमस्कार। You're looking as smart as ever. Thank you very much. Thank you very much. बिल्कुल आपके जैसे ना। I am really very happy with your team performance. I mean, it's mind blowing that जो आपका टीम आज का performance कर रही है। I heard that there were more than 3 people in your team making over 10 lakh rupees a month, so which is outstanding, which is, and that too ये time में बड़े-बड़े institutes, बड़े-बड़े company, बड़े-बड़े hotels, even Emirates Airways has removed 9,000 staff. ये latest news बता रहा हूँ आपको। Emirates Airways, one of the top airlines in the world, 9,000 staff को निकाल दिया। बाकी जो staff है उनको जिसका 1800 dirhams था, 18,000 dirhams था, that is come down to 6,000 and 7,000. So anyway, so we need you to understand that how fantastic a company is, sir. Absolutely. Thank you, sir. Jiten, thank you again for coming. Jiten ने मैंने एक small invitation किया था, he agreed and he's come right away. So we'll give full power to Jiten, sir. Thanks for coming, sir. Jiten, all yours. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. All right. So good to see you all. आप लोगों से एक सच्ची घटना शेयर करता हूँ। ये बात है आज से, अभी क्या चल रहा है 2020, ये बात है आज से 9 साल पहले की, सन 2011 की। मैं पहली बार अपनी लाइफ में एक इंटरनेशनल ट्रेवल किया था, पहली बार इंटरनेशनल ट्रेवल, और वो फॉरएवर की तरफ से मुझे मौका मिला था मलेशिया ट्रेवल करने का 2011 में कोलालमपुर में। और जब मैं फर्स्ट टाइम गया और वहां पे कंपनी का ग्लोबल, उस समय एशियन रैली होता था, तो एशियन रैली का प्रोग्राम चल रहा था किसी होटल के अंदर, लगभग 4-5 हजार लोग थे वहां पे। और उस टाइम पे मैंने साइमन सर को स्टेज पे कोलालमपुर में होस्टिंग करते हुए सुना था, और उस दिन मैं उनका फैन हो गया था। और उस दिन जब मैंने उनको स्टेज पे 5,000 लोगों के सामने होस्टिंग करते हुए सुना, तो मैंने एक सपना लिया था कि मैं भी साइमन सर की तरह एक दिन कंपनी के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम्स को होस्ट करूंगा। और ऑफ कोर्स आप सब लोग शायद ऑलरेडी जानते होंगे कि 2017 में मुझे फॉरएवर ने मौका दिया अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाने का, और दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 15,000 से ज्यादा लोग थे, जहां मैंने अपनी कामयाबी के किस्से सुनाए थे उन सब लोगों को, जो 160 देशों से ज्यादा अलग अलग कंट्री से वहां पर उस एरिना में उस समय मौजूद थे। सो कहते हैं कि सपने पूरे होते हैं, बस आपके अंदर ना एक करेज होने चाहिए सपने को देखने की। जब मैं इस बिजनेस में आया था आज से 10 साल पहले, सन 2010 में, उस समय ऑलरेडी मैं एक नौकरी कर रहा था। मैंने अलग अलग नौकरियां करी हैं, मैंने कुछ साल बीपीओ के अंदर भी काम किया है। उससे पहले, यहाँ फॉरएवर में आने से पहले, मेरी नौकरी के साथ मेरा टैक्सी बिजनेस भी चल रहा था। अच्छा, टैक्सी बिजनेस से पहले मैं ऑलरेडी 3 बिजनेस और कर चुका था। 3 बिजनेस करके, कई सारी नौकरियां करके, और जब फॉरएवर मेरे को मिला, वो ऑलरेडी 2 काम कर रहा था, ऑलरेडी ठीक ठाक कमा रहा था, रोटी चल रही थी। बट ऐसा क्या था जिसने मुझे एनकरेज किया, मुझे मोटिवेट किया फॉरएवर के साथ काम करने के लिए? वो चीज थी टाइम फ्रीडम, वो चीज थी फ्री ट्रैवल, वो चीज थी फ्री कार इंसेंटिव। आजकल ना सब लोग फ्री बहुत पसंद करते हैं, फ्री फ्री फ्री। फॉरएवर आपको बहुत सारी चीजें फ्री ऑफर करती है जब आप उनको क्वालिफाई करते हैं। लेकिन
आप बहुत मेहनत करते हैं नौकरी में, आप बहुत मेहनत करते हैं अपने बिजनेस में, आप पैसा तो कमाते हैं, बट कोई कंपनी क्या आपको ट्रैवल इंसेंटिव ऑफर करती है? क्या कोई कंपनी आपको कार इंसेंटिव ऑफर करती है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसने मेरे को, जब मैंने देखा कि यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, टाइम फ्रीडम मिल सकती है, तो मैंने ये जानते हुए कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करना आता, मुझे कोई आइडिया नहीं है, हालांकि जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बताया उन लोगों ने मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, लेकिन इस बिजनेस को समझने के बाद, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, इस बिजनेस को देखने के बाद नहीं, इस बिजनेस को समझने के बाद मेरे को ये रियलाइज हो गया कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मैं मेरे सपनों को पूरा कर सकता हूं, जो 2001 से 2010 तक मेरे नौकरी और बिजनेस में, ऑर्डिनरी जॉब और ऑर्डिनरी बिजनेस करके जो अचीव नहीं हो सका, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के माध्यम से अचीव हो सकता है। ये बात मेरे को 2010 में कंपनी के बिजनेस प्लान को, कंपनी के एथिक्स को, कंपनी के प्रोडक्ट्स को समझने के बाद, देखने के बाद नहीं, समझने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे सपने यहाँ पूरे हो सकते हैं, और तब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे इस बिजनेस को करना है। समझने के बाद मैंने इस बिजनेस को सीखना शुरू किया। बहुत से लोग गलती ये करते हैं, चाहे वो खुद एक टीम, चाहे वो ऑलरेडी अपनी टीम मेंबर को ट्रेनिंग देते हैं, या उनकी टीम में जो भी प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, जो टीम मेंबर नए उनके साथ एसोसिएट होते हैं, समस्या ये है वो लोग भी और आप लोग भी जो एएस ऑलरेडी बन चुके हैं, वो अपनी टीम को ज्वाइन करा के, एसोसिएट करके केवल ये देखते हैं कि फटाफट से काम निकलवाया जाए। जो नए लोग हैं वो भी ये सोचते हैं, यार मेरा अपलाइन तो लाख रुपए महीना कमा रहा है, 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, फटाफट से मेरे को इनकम आनी चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि अपलाइन की नॉलेज में, अपलाइन की स्किल्स में, अपलाइन की बॉडी लैंग्वेज में, अपलाइन के कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का डिफरेंस है। इसीलिए वो व्यक्ति जो ऑलरेडी 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल फॉरएवर में लगा चुका है, वो क्यों लाखों रुपए कमा रहा है? क्योंकि उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज ज्यादा है। और यही गलती हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। जब वो शुरुआत में इस बिजनेस में आते हैं तो वो अपनी टीम को एक माइंडसेट नहीं दे पाते। मेरे हिसाब से बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। और रादर एनी बिजनेस, लोग इसलिए बिजनेस नहीं स्टार्ट करते कि उनके पास पैसे नहीं है। ज्यादातर लोग बिजनेस नहीं करते, ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, ये आपको भी पता होगा। लेकिन कारण ये नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं है इसीलिए वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। लोगों के पास लैक ऑफ मनी नहीं है, लोगों के पास लैक ऑफ माइंडसेट है, और लैक ऑफ माइंडसेट की वजह से वो लोग बिजनेस नहीं कर पाते। और यही हमारे साथ में भी होता है कि जब हमारी टीम में कोई नया व्यक्ति आता है, हम उसको 10, 20, 30 हजार रुपए से काम तो स्टार्ट करा देते हैं। 30,000 रुपए उसके लगवा के उसकी 2cc करा देते हैं, चाहे वो 1 शॉट में करे या धीरे धीरे प्रोडक्ट्स को रिटेल करे। जैसे करके, जैसे ही वो अपनी एएस बन जाता है 2cc कंप्लीट करने के बाद, 30,000 की टर्नओवर करने के बाद, अब हमारा काम होता है बस फटाफट से हम उसको उसके डाउनलाइन में 2cc करवाएं, लोगों को एएस बनवाएं, उसकी टीम में लोगों को रिक्रूट करवाएं। बट हम इस प्रोसेस में ज्वाइनिंग के बाद, एएस बनने के दौरान, ध्यान से समझना, ज्वाइनिंग के बाद, एएस बनने के दौरान, उसकी टीम में नए एएस रिक्रूट करने के बीच में हम उसको माइंडसेट देना भूल जाते हैं। और इसी दौरान एएस बनने के बीच में या एएस बनने के बाद जब वो काम स्टार्ट करता है ना, और जब उसको नेगेटिविटी मिलती है, जब उसको डिस्करेजमेंट मिलती है, जब उसको रिजेक्शन मिलती है, तो वो व्यक्ति गिव अप कर देता है। वो व्यक्ति काम को स्टार्ट करने से पहले ही बंद कर देता है। आपको मालूम है, ज्यादातर लोग हमारे बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, पहले 90 दिन के अंदर बिजनेस को छोड़ देते हैं। लेट मी से इट अगेन, ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पहले 90 डेज में क्विट कर देते हैं। क्यों? इट्स बिकॉज वी आर फेल to give the proper mindset to our team. वो जो 90 days है ना,
उसकी हमें दिमाग की नर्चरिंग करनी है। और नोइंगली और अननोइंगली 2010 में जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैंने मेरे दिमाग की नर्चरिंग करी। यहाँ मेरे जो अपलाइन थे मिस्टर प्रिंस, उन्होंने भी मेरे को हेल्प किया मेरी दिमाग की नर्चरिंग करने में। वो जो माइंडसेट, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब हम यहाँ पे फॉरएवर में बिगिनिंग में आते हैं, गाइस मेरा वीडियो स्पॉटलाइट, हाँ अभी ठीक है। All right, guys, I would request every one of you to kindly stop your video if possible. आप सब लोग ना अपना वीडियो स्टॉप कर दो। आप अपने स्क्रीन पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे वीडियो स्टॉप का ऑप्शन आएगा। देखो जैसे मैंने ये क्लिक किया तो मेरा वीडियो बंद हो गया। आप लोग सब अपना वीडियो ऑफ कर लें प्लीज। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, वीडियो ऑफ कर लोगे तो मजा आ जाएगा, फिर और बढ़िया से मीटिंग करेंगे आपके साथ। ऑल राइट, ग्रेट। सो वो जो शुरुआत में मैं 2005 में पहली बार मैंने फॉरएवर को देखा, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। 2005 में मैंने फॉरएवर को देखा, मैंने समझा नहीं। जब मैंने देखा और देखने के बाद जब मैं घर पहुंचा, पापा को बताया, दोस्तों को बताया, ऐसे ऐसे बहुत बढ़िया बिजनेस है, रईस हो सकते हैं, बहुत पैसे आ सकते हैं, तो सबने बोला अच्छा यही वही है ना, मेंबर बनाने वाला काम, चेन बनाने वाला काम, कोई फायदा नहीं है, बेवकूफ बन जाएगा, पैसे खराब हो जाएंगे। मैं डर गया। मैं कहा यार पता नहीं कहाँ फंसने जा रहा हूँ, मैं कहाँ पैसे लगाने जा रहा हूँ। और जबकि जिन्होंने मुझे काम बताया था उन्होंने तो कोई पैसे लगाने के लिए बोले भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं लोगों के मन में ऐसा क्या है, चेन, मेंबर, सेल, घर घर जाना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, कंपनी भाग जाएगी। अब मैं डर गया 2005 में। मैंने कहा छोड़ो यार, इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। बट 2005 और 2010 के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ये रियलाइज हो गया कि ये ऑर्डिनरी जॉब और ऑर्डिनरी बिजनेस से रोटी चलने के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं रिसेप्टिव हो गया अपॉर्चुनिटीज के लिए। और उसी दौरान 2010 में जब मैंने रिच डैड पुअर डैड, लेट मी गिव यू एन एडवाइस, आपकी टीम में जब भी कोई व्यक्ति नया आता है उसको जरूर रिच डैड पुअर डैड या फिर बिजनेस स्कूल पढ़ने के लिए जरूर दिया करो। एक प्रोस्पेक्ट कहता है मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना, आप बोलो कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को पढ़ने का शौक है, बोला हाँ है, ये एक पीडीएफ भेज रहा हूं तेरे व्हाट्सएप पे, इसको पढ़ लियो। कब तक पढ़ लेगा मेरे को ये बता दे, डेली कितने पेज पढ़ सकता है मेरे को ये बता दे। आप अगर किसी व्यक्ति को, मैं कह रहा हूं अपॉर्चुनिटी बाद में देना, पहले आप उसको विजन दे दो, विजन दे दो। अगर आपने उसको विजन दे दिया, अगर आपने उसको माइंडसेट दे दिया तो कहां जाएगा। हिंदुस्तान में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से बेटर कंपनी तो इस हिंदुस्तान में है ही नहीं। अगर उसको हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया कंपनी के साथ काम करना है, नेटवर्क मार्केटिंग को समझ के, विजन को लेके, माइंडसेट को डेवलप करके, तो वो बेचारा जाएगा कहां, वो आपके पास आएगा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, बंदा देखते हैं, फटाफट सोचते हैं 2cc कराएं और उसको काम पे लगाएं, बस वही समस्या है। हम बंदा रिक्रूट करने के, 2cc कराने के प्रोसेस में उसको नर्चर करना भूल जाते हैं, उसको ट्रेनिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करना भूल जाते हैं। आज मेरे को एक व्यक्ति ने फोन किया, बोला सर मैंने ना इस महीने काफी सारे लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी का सेशन दिखाया है, लेकिन बहुत कम लोग कन्वर्ट हो पाए। तो मैंने उसको एक क्वेश्चन बोला, मैंने कहा जब आप अपॉर्चुनिटी का सेशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप उसको फॉलो अप कैसे करते हो। बोला सर फॉलो अप कैसे करता हूँ, मैं तो उसको कुछ वीडियोस भेज देता हूँ और उसके बाद मैं उसको बोलता हूँ कि ये कल एक सेशन है, वो भी अटेंड कर लेना, अगर वो कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। मैंने बोला यही गलती है। आप जब एक प्रोस्पेक्ट को रिक्रूट कर लेते हो या आप जब उसको पहला सेशन अटेंड करा देते हो, तो आपका सबसे पहला काम उसकी 2cc कराना नहीं है। आपका सबसे पहला काम है उस व्यक्ति को आपके ट्रेनिंग सिस्टम के साथ में कनेक्ट कर देना। आपका जो भी ट्रेनिंग सिस्टम है, चाहे वो आपके ग्रुप का पर्सनल ट्रेनिंग सिस्टम है, चाहे वो आप कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट हो, जो भी तरीका है आपका ट्रेनिंग लेने का, आप जिन भी ट्रेनिंग्स को सपोर्ट लेते हो, उन ट्रेनिंग्स के साथ में आपने नए प्रोस्पेक्ट को आपने उसको कनेक्ट कर देना है। जब आपका नया प्रोस्पेक्ट ट्रेनिंग सिस्टम के साथ में कनेक्ट हो जाएगा तो उसको माइंडसेट मिलेगा,
और जब उसको माइंडसेट मिलेगा तो वो कहीं नहीं जाएगा। वो पहले हफ्ते में 2cc नहीं करेगा, कोई बात नहीं, दूसरे में नहीं करेगा, कोई बात नहीं, तीसरे में नहीं करेगा, कोई बात नहीं, चौथे हफ्ते में नहीं करेगा, कोई बात नहीं, बट अगर वो आपके ट्रेनिंग सिस्टम के साथ में जुड़ा रहेगा, अगर उसको कंपनी की पावर समझ में आएगी, बिजनेस की पावर समझ में आएगी, प्लान की पावर समझ में आएगी, इंडस्ट्री का पोटेंशियल समझ में आएगा, आपकी ट्रेनिंग्स के माध्यम से डेली बेसिस पे जब कुछ ना कुछ उसको मिलता रहेगा ना, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा इंडस्ट्री को लेके, बिजनेस को लेके, और फिर वो आपसे तरीके पूछेगा कि कैसे 2cc करनी है, कैसे काम करना है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे सुपरवाइजर करना है, कैसे इस बिजनेस में मैनेजर बनना है, फिर वो व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाएगा। तो मेरे साथ शुरुआत में यही हुआ, जब मैं इस बिजनेस में आया, बिजनेस करना नहीं आता था, लेकिन क्योंकि मैंने बिजनेस को समझ के मैंने इसको लर्न किया। अच्छा, लर्न करने के बाद भी ऐसा नहीं है इट वाज अ केक वॉक, इट वाज नॉट एट ऑल अ केक वॉक. It was quite difficult in the beginning because I faced lot of rejections because I didn't know how to communicate with people effectively. Initially मुझे मालूम नहीं था, मैंने कभी भी ये पब्लिक डीलिंग कभी नहीं किया था मैंने लाइफ में, फॉरएवर में आने से पहले। तो मेरे को 4 लोगों को कैसे हैंडल करना है वो सब मुझे नहीं आता था, लेकिन मैंने बोला ना, बिजनेस का फॉरएवर में माइंडसेट मिल गया था, एक विजन मुझे दिख गया था कि फॉरएवर के माध्यम से मैं कामयाब हो सकता हूं। तो बावजूद सैकड़ों हजारों रिजेक्शंस आए, पहला रिजेक्शन आपको आपके घर से मिलेगा। ज्यादातर लोगों को जो नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट करते हैं, फॉरएवर में स्टार्ट करते हैं, ज्यादातर लोगों को पहला रिजेक्शन उनको उनके घर से मिलता है, एंड आई वाज नो डिफरेंट। मुझे भी पहला रिजेक्शन मेरे घर से मिला, बट इट्स ओके, एज आई सेड, because I had the mindset, I had the right mindset, that is why I could overcome the family rejection. उसके बाद दोस्तों को बताया तो दोस्तों से रिजेक्शन मिला। अच्छा, समस्या पता है क्या है? 100 में से 99, लिख लो आप, बता रहा हूं, 100 में से 99 लोग जो आपको बोलेंगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, 100 में से 99 लोगों को असल में पता ही नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। एक बंदे को मैंने बोला, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। अच्छा, वही चेन बनाने वाला काम ना। मैंने बोला वो क्या होता है? कह रहा वही जिसमें मेंबर बनाने होते हैं। मैं कहा उसके बाद फिर क्या होता है? कह रहा वही जैसे वो फलानी कंपनी आई थी, जैसे वो फ्रीवे और पुलवे आई थी। मैंने कहा उसमें क्या करना होता है? कह रहा इतना थोड़ी सब पता है हमें। मैंने कहा गधे, जब तुझे कुछ पता नहीं है तो तू फिर ये क्यों कह रहा है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? पहले समझ तो ले। टोनी रॉबिन्स ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, अगर आपको कोई काम समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको करने के लिए हाँ बोल दो और फिर बाद में सीख लो कि उसको करना कैसे। अभी टोनी रॉबिन्स को तो मानोगे ना, ये सारी अपनी ही बुद्धि चलाओगे। कामयाब होना है तो जो कामयाब लोग हैं उनसे सीखना पड़ेगा ना। एक बार क्या हुआ, एक इंटरव्यू के दौरान एक व्यक्ति ने अपने 40 साल के करियर में लगभग 600 किताबें पढ़ डाली। कितनी? 600 किताबें पढ़ डाली उस आदमी ने। अब एक व्यक्ति उसका इंटरव्यू ले रहा था और इंटरव्यू के दौरान उसने उसको बोला सर, आपने अपने 40 साल के करियर में 600 किताबें पढ़ डाली और आपने उन किताबों का एक निचोड़ निकाल दिया है जिसका नाम है आपकी किताब का 1000 सक्सेस प्रिंसिपल। उन 600 किताबों का निचोड़ है आपकी किताब 1000 सक्सेस प्रिंसिपल्स। कहता सर, हमारे जो श्रोता हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ा बोरिंग महसूस करते हैं पढ़ते हुए। अगर आपको इन 1000 प्रिंसिपल्स का भी निचोड़ निकालना हो तो वो एक एडवाइस क्या होगी उन 1000 प्रिंसिपल्स का भी निचोड़? तो उन्होंने बोला, successful people learn from successful people. Successful people learn from successful people. How good it is. लेकिन बहुत सारे होशियार लोग जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि मैं खुद ही कर लूंगा। हर व्यक्ति का लाइफ में कोई ना कोई कोच होता है। सचिन तेंदुलकर का भी कोच है, कपिल शर्मा का भी कभी ना कभी कोई ना कोई कोच रहा होगा,
लता मंगेशकर का भी कभी ना कभी कोई ना कोई कोच रहा होगा, शाहरुख खान का भी कोई ना कोई कोच रहा होगा। आई एम राइट और रॉन्ग? इफ यू बिलीव आई एम राइट, जस्ट रेज योर हैंड। Just raise your hand if you think I'm right. I can see some of the hands which are going up. I need more hands. How many people think that I'm right? I need more hands. 51, 52, 53, 55. I need more. All right, wonderful. Okay, very good. 72, 73. Oh, it's going down. It's okay. Don't take that much stress, okay? All right. So, यहाँ सक्सेसफुल पीपल लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। तो यहाँ पर फॉरएवर में प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जब आप लोगों को बिगिनिंग में रिजेक्शन आती है ना, जैसे मुझे रिजेक्शन आई, तो यहाँ पे वो लोग, यहाँ पे ब्यूटी पता है क्या है फॉरएवर में? आप जो बनना चाहते हो, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, आपको अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, आपको वर्ल्ड टूर करना है, आपको फैमिली के लिए कुछ बेटर करना है, आपको सोसाइटी के लिए कुछ बेटर करना है, या ABC अगर आपको कोई और काम करना है, जो कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हो वो फॉरएवर में कोई ना कोई व्यक्ति ऑलरेडी अचीव कर चुका है। यस और नो? वो चीज ऑलरेडी फॉरएवर में कोई ना कोई व्यक्ति अचीव कर चुका है। और ब्यूटी क्या है हमारे बिजनेस की? वो व्यक्ति जो अचीव कर चुका है वो आपको सिखाने के लिए भी तैयार है कि उसने वो कैसे अचीव किया। अगर आपके घर के पास में एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, बहुत चलता है, बहुत फेमस है, बहुत सेल होती है, लाइन लगती है, वहां पे लोग नंबर लगा के खाना खाते हैं, अब आपको उसी एरिया में एक रेस्टोरेंट खोलना है, पैसे की दिक्कत नहीं है, आपको पैसा बहुत है आपके पास, आपको उसी एरिया के अंदर एक रेस्टोरेंट खोलना है। अब आप उसी फेमस रेस्टोरेंट वाले के पास में जाते हो और जाके उसको बोलते हो कि भाई देख ऐसा है, मेरे को तेरे एरिया में रेस्टोरेंट खोलना है और मैं चाहता हूं कि वो मेरा रेस्टोरेंट तेरे रेस्टोरेंट से भी ज्यादा फेमस हो जाए, बहुत लोग आए, जैसे तेरे यहाँ लाइनें लगती है मेरे यहाँ भी लाइनें लगे, बस अब तू इतना सा काम कर दे कि मेरे को वो सारी रेसिपी बता दे, मेरे को वो सारे सीक्रेट बता दे अपने ट्रेड के, जिसकी वजह से तेरा रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा फेमस है। क्या होगा? वो रेस्टोरेंट का ऑनर उसको बता देगा, अजी छोड़ो, वो जो पूछने जाएगा ना बेचारा पिटते पिटते बचेगा। वो बोलेगा भैया दाद देनी पड़ेगी तेरे ओवर कॉन्फिडेंस की कि जो तू हमसे हमारे व्यापार का सीक्रेट पूछने आ गया। लेकिन ऐसा फॉरएवर में होता है क्या? ऐसा फॉरएवर में होता है क्या? नहीं होता ना। यहाँ पे हमारे बिजनेस की ब्यूटी ही यही है कि जो लोग कामयाब हो चुके हैं वो आपको सिखाने के लिए तैयार हैं कि वो कामयाब हुए कैसे। यही तो ब्यूटी है। लेकिन कुछ लोग इसको ग्रांटेड ले लेते हैं और कुछ लोग इस फीचर की वजह से, इस बेनिफिट की वजह से, इस बिजनेस में जो ज्यादा होशियार नहीं बनते वो कामयाब हो जाते हैं। तो मैंने भी यही किया। बिगिनिंग में जब मुझे बिजनेस करना नहीं आता था, घर से रिजेक्शन स्टार्ट हुई, दोस्तों से रिजेक्शन स्टार्ट हुई, लेकिन हमेशा मेरे अपलाइन ने, मेरे सिस्टम ने, मेरी फॉरएवर ने हमेशा मुझे लिफ्ट किया। आपके साथ भी वही होने वाला है। जब आप बाजार में जाओगे, अपने रिलेटिव से बात करोगे, दोस्तों से बात करोगे, स्ट्रेंजर से बात करोगे, आपको बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी के साथ में काम करते हो, दुनिया के सबसे बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ में काम करते हो, जिसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपको पूरी करेज के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करने की जरूरत है। जैसे मैंने 2010 में 11 में, आपको मालूम है मेरी ग्रोथ बड़ी स्लो रही शुरुआत में। मैं जब 10 में आया, मैंने बोला मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन माइंडसेट मिल गया था फॉरएवर में, इसीलिए मैं लगा रहा। आपको मालूम है शुरुआत में कितनी लाइंस मेरी बनती थी और कितनी लाइंस मेरी टूट जाती थी, बनती थी टूट जाती थी, बनती थी टूट जाती थी। बहुत से लोग अगर मेरी जगह कोई दूसरे लोग होते ना, शायद वो गिव अप कर देते, क्योंकि इतनी बार लाइन बनी, इतनी बार टूटी, इतनी बार लाइन बनी, इतनी बार टूटी। मेरे को मैनेजर बनने में 3 साल से ज्यादा लगे थे, लेकिन आज मेरी टीम में मैनेजर्स 6 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने, 7 महीने में मेरी टीम में मैनेजर्स बन जाते हैं। और वो भी
अच्छे टीम के साथ, अच्छे बिजनेस वॉल्यूम के साथ। और मेरे को मैनेजर बनने में 3 साल से ज्यादा लगे थे। रीजन क्या है कि आज हमारे पास में वो सिस्टम है, आज वो सिस्टम हम अपनी टीम को प्रोवाइड करवाते हैं, जिस सिस्टम की वजह से आज टीम ग्रो होती है। लेकिन जो मेरी कमिटमेंट थी ना, मेरे सपनों को लेकर, आपकी ना आपकी कमिटमेंट आपकी लाइफ के साथ होनी चाहिए, आपके ड्रीम्स के साथ होनी चाहिए, आपकी कमिटमेंट फॉरएवर के साथ होनी चाहिए। अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को चूज कर लिया है कि आपको इसमें कामयाब होना है ना, तो फिर कोई भी वजह नहीं बननी चाहिए आपका इस बिजनेस में फेलियर होने की। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप सब लोग अगर एक बार आप सोच लो कि आपको इस काम को करना है, तो फिर आपको इसको समझना है, आपको इसको सीखना है और हर उस चैलेंज को ओवरकम करना है। या अगर ओवरकम करना नहीं आता तो उसको ओवरकम करना सीखना है, ताकि अल्टीमेटली आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सको। फॉरएवर इतना ब्यूटीफुल बिजनेस है, सब लोग ना हिंदुस्तान में फ्री एडवाइस देने को तैयार है कि तू बेटा ये कर ले, तू वो कर ले, तू वो कर ले। सब लोग आपको मंजिल बताते हैं, बट उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कोई नहीं दिखाता। ये साइमन सर ने जो आज आप लोगों के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट किया ना, ये जो आपके लिए होस्ट किया ना, जो डेली बेसिस पे वो आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं ना, ये क्या है कि ये आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो आपकी मंजिल जो है ना, उसका रास्ता आपको दिखाया जाए, आपको रास्ता दिखाया जाए, ताकि आप उस रास्ते पे चल के आप अपनी मंजिल तक पहुंच सको। आपको पैसा कमाना है, बचपन से आपको बताया जा रहा है कि बेटा अच्छे स्कूल में जा, अच्छे नंबर लेकर आ, अच्छे नंबर लाने के बाद अच्छे कॉलेज में जाइए, अच्छे कॉलेज में जाएगा, अच्छी जगह तेरी प्लेसमेंट हो जाएगी। बट अल्टीमेटली अच्छी प्लेसमेंट का पर्पस क्या था? अच्छी प्लेसमेंट का पर्पस था अच्छे पैसा कमाना, अच्छी प्लेसमेंट का पर्पस था कामयाब होना। लेकिन बचपन से लेकर आज तक किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसा कमाना कैसे है, कामयाब होना कैसे है। आज तक किसी ने नहीं सिखाया। मतलब बाकी सब लोगों की जो एडवाइस है ना, वो बाजार की दवाइयों की तरह है, जो केवल सिम्टम्स पे काम करती हैं, और हमारे एलोवेरा जो है ना, वो रूट कॉज के ऊपर काम करता है। तो फॉरएवर की जो अपॉर्चुनिटी है, वो असल में वो रूट कॉज के ऊपर काम करती है। वो आपको असल में जो आपका प्रॉब्लम है, जो आज तक आपको पैसा कमाना है, ना स्कूल में सिखाया, ना कॉलेज में सिखाया, ना घर में सिखाया। फॉरएवर के वेबिनार्स में आपको सिखाया जाता है कि आपको पैसा कैसे कमाना है, आपको कामयाब कैसे होना है। और मेरे को भी बिल्कुल इसी तरीके से 10 साल पहले जब मैं आया था इस बिजनेस में, मुझे भी बिल्कुल इसी तरीके से काम को सिखाया गया था। बावजूद मैंने बहुत सारे रिजेक्शंस को फेस किया। 3 साल मुझे लगे बिजनेस को बिल्ड करने में, मैनेजर बनने में। चौथे साल में मेरे को 1 लाख रुपए महीना आना स्टार्ट हुआ, चौथे साल में। लेकिन उसके बाद फिर मैंने टेक ऑफ कर लिया। लेकिन उस दौरान उन 4 सालों में इतने सारे चैलेंजेस आए कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी अगर आप लोग बिगिनर हो ना, बिलीव मी, जितने चैलेंजेस आपको बताए गए हैं ना कि आपको इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए आएंगे, वो कम बताए गए हैं, उससे ज्यादा आएंगे। लेकिन मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आपने वो रॉबर्ट कियोसाकी का जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट वाला, जो वो ESBI होता है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, आपने वो उसका वो देखा होगा, पिक्चर देखा होगा उसका। उसमें बताया जाता है कि 5% लोग जो है ना, उनके पास 95% पैसा है, और 95% लोगों के पास हिंदुस्तान का केवल 5% पैसा है। अब अगर आपको कामयाब होके उन 5% लोगों में आना है जो हिंदुस्तान के 95% पूल में से पैसा कमाते हैं, तो क्या ये काम आसान है? जब आप हिंदुस्तान के 5% टॉप कामयाब लोगों में आना चाहते हो, तो क्या ये काम आसान है? ये काम आसान नहीं है। लेकिन फॉरएवर की ट्रेनिंग सिस्टम, फॉरएवर की सपोर्ट सिस्टम की वजह से ये काम सिंपल हो जाता है, आसान नहीं होता। बट you need to expect more rejections than you are told. You need to expect more rejections than you are told. But if you face rejections, किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है,
You know, the more rejected people are the most successful people in this world. The more you get rejected, the more successful you become. जितना आपको रिजेक्शन मिलेगा उतना आप कामयाब होते चले जाएंगे. The more you embrace rejection, the more you will reach near to your goal. इसको ऐसे समझो, एक व्यक्ति X से कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है. अब उसने एक चोट मारी, पेड़ नहीं कटा. 2 मारी, 3 मारी, 4 मारी, 10 मारी, 20 मारी, 25 मारी, अभी भी पेड़ नहीं कटा. लेकिन 45, 46, 47, 49th हिट पे भी पेड़ नहीं कटा, बट 50th हिट पे पेड़ कट गया. इसका मतलब क्या है कि केवल वो 50th हिट ने काम किया पेड़ को काटने का? नहीं, क्योंकि वो 49 हिट काम कर रहे थे, इसीलिए 50th हिट पे वो पेड़ कट गया. एंड इट इज द सेम बिजनेस. बहुत सारे लोगों को कामयाबी तो चाहिए, बट कामयाबी के लिए वो माइंडसेट, वो स्किल्स जो रिक्वायर्ड है ना हमारे बिजनेस में कामयाब होने के लिए, वो आपको चाहिए, वो आपको लर्न करनी है. आप सोचो 20,000 रुपए की नौकरी के लिए बीटेक करने के बाद, 4 साल पढ़ने के बाद, लाखों रुपए की यूनिवर्सिटी में फीस भरने के बाद केवल 20-25 हजार रुपए की ज्यादातर लोगों की नौकरी लगती है. इमेजिन 4 साल पढ़ने के बाद 20-25 हजार रुपए की नौकरी लगती है. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आफ्टर 3 months फ्रॉम फॉरएवर? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? डू यू एक्सपेक्ट टू अर्न $1 million a month? But many people, they expect to earn good amount of money from forever, but the only challenge is they are not willing to pay the price. यूनिवर्सिटीज में हम लोग 3-4 साल 5 साल बिता देते हैं और उसके बाद भी एक्सपेक्ट नहीं करते 50,000 कमाने का, बट फॉरएवर में 3 महीने के बाद ही हमें लगता है कि यार अपलाइन को 50,000 पे आ रहा है, हमें क्यों नहीं आ रहा. इस सोच को ठीक करना है, स्किल्स को डेवलप करना है. आगे मैं बताऊंगा आपको क्या स्किल्स आपको डेवलप करनी है, डोंट वरी अबाउट इट. बट आपको, जैसे कि मैंने आपको अपने स्टोरी बताया, शुरुआत में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत था. शुरुआत में मेरा जो ग्रोथ था बड़ा स्लो था. आप में से किसी का ग्रोथ फास्ट हो सकता है, किसी का मीडियम पेस पे हो सकता है, किसी का स्लो हो सकता है. चिंता नहीं करनी. आपको दिल्ली से मुंबई मान लो गाड़ी से जाना है. अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 120 है तो हो सकता है आप 12 घंटे में 15 घंटे में पहुंच जाएंगे. मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बाय रोड का भी दिल्ली से मुंबई नहीं आया. एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझो. मान लो अगर आप 120 पे चलते हो तो 12 घंटे में पहुंच जाओगे. 60 पे चलोगे तो क्या होगा? 20 घंटे 22 घंटे में पहुंच जाओगे, 24 घंटे में पहुंच जाओगे. मान लो आप 30 की स्पीड पे चलते हो तो क्या होगा? हफ्ता लग जाएगा, पहुंच तो जाओगे. लेकिन अगर आपकी गाड़ी गियर में ही नहीं डलेगी तो क्या कभी दिल्ली से मुंबई पहुंचोगे? कभी भी नहीं पहुंच पाओगे. मतलब है कि आपकी जो फॉरएवर की गाड़ी है बस वो गियर में डलनी चाहिए. गियर पहले से ही स्टार्ट करते हो. आप BMW भी चलाओगे, ऑडी चलाओगे, उसकी जो बिगिनिंग होती है वो पहले गियर से होती है. ऐसा नहीं होता कि मतलब आप सेल्फ मारते ही, एक्सीलेटर देते ही गाड़ी पहले वो 6th गियर में. ऐसा नहीं होता. पहले फर्स्ट गियर पड़ता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर 6th, फिर 7th. स्टेप बाय स्टेप होता है. आपका फॉरएवर भी स्टेप बाय स्टेप चलेगा, मेरा फॉरएवर भी स्टेप बाय स्टेप चलेगा. किसी व्यक्ति को जल्दी कामयाबी मिल जाएगी, किसी व्यक्ति को कामयाबी मिलने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा. बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे कामयाबी धीरे मिल रही है या फास्ट मिल रही है. मकसद ये है कि कामयाबी बस मिलनी चाहिए, चाहे धीरे मिले चाहे जल्दी मिले. और एक बात ध्यान रखना, जब आप महल बना रहे हो ना, तो दूसरों के घरों को देखकर चिंता मत करना कि यार उसका कैसे जल्दी बन गया, क्योंकि घर जल्दी बन जाते हैं, महल बनने में समय लगता है. अगर आप फॉरएवर में अपना महल बना रहे हो ना, तो दूसरों के घरों को देखकर ज्यादा चिंता मत लगाओ. आप फॉरएवर में लॉन्ग टर्म विजन के लिए आए हो, आप फॉरएवर में लॉन्ग टर्म बिजनेस करके कामयाब होने के लिए आए हो, अपनी फैमिली के लिए आए हो, अपना करियर बिल्ड करने के लिए आए हो. इसीलिए जल्दी या धीमे की आपने चिंता नहीं करनी. बस आपको वो सारी की सारी स्किल्स को लर्न करना है जो स्किल्स रिक्वायर्ड है हमारे बिजनेस में कामयाब होने के लिए. अगर आप वो स्किल्स को लर्न करोगे तो यकीनन
sooner or later you will succeed in the business. I'll show you something. When I started the business, तो मेरा जर्नी फॉरएवर में कैसे स्टार्ट हुआ था, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, एंड देन you would be able to see how I started in the business. Okay, all right, wonderful. Guys, can you see my screen? Just raise your hand if you can see my screen. Yes, we can see it. Perfect. Yes, sir. All right, wonderful. Thank you very much. See, you know, my growth as a person, when I started the business in 2010, I looked like this when I started the business. And this picture was taken in Malaysia, in Kuala Lumpur, when I first traveled to Malaysia International for the first time. This was clicked on in 2011. This was in 2013. You know, this is how I grew in the business. Rome was not built in a day. It took time. It took time. In same way, आज आपको मेरी कामयाबी अच्छी लग रही होगी, साइमन सर की कामयाबी अच्छी लग रही होगी, आपको फॉरएवर में इतने सारे लोग हैं जो बेहद कामयाब हैं, आपको उनकी कामयाबी अच्छी लग रही होगी. बट रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. इट टुक टाइम. I'll show you how. ये 2010, 2011, then 2013, धीरे धीरे चेंजेस आए मेरे अंदर, धीरे धीरे मैं ग्रो हुआ. Then 2014 and this is 2015. बीच की पिक्चर्स नहीं है, and this is in 2018 and this is in 2019. Guys, do you see the difference? Do you see this picture? And do you see this picture? How different it is? So life was not changed in a day. It took time. But what I am saying is, I am not saying कि आप आज 2020 में स्टार्ट करो और 2029 तक आप फॉरएवर में कामयाब हो जाओगे. I am not saying that. वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है. और पिछले 4 महीने के अंदर जो दुनिया बदल गई है ना, वो तो किसी ने सोचा ही नहीं था. सारा का सारा फोकस, जो कामयाब लोग थे वो आज भी कामयाब है, जो फेलियर थे वो आज भी फेलियर है, जो बहाने ढूंढ रहे थे वो आज भी बहाने ढूंढ रहे हैं, जो तरीके ढूंढ रहे थे वो आज भी तरीके ढूंढ रहे हैं. जिनका बिजनेस कोरोना से पहले ग्रो हो रहा था आज भी ग्रो हो रहा है, जिनका बिजनेस कोरोना से पहले ग्रो नहीं हो रहा था उनका आज भी ग्रो नहीं हो रहा है. रीजन मालूम है क्या है? बहुत सारे लोग चेंज नहीं अडेप्ट कर पाते हैं. एक बार की बात है, क्या होता है, एक पानी पूरी वाला जो है एक सोसाइटी के बाहर खड़ा होकर गोलगप्पे बेच रहा होता है. पानी पूरी, मुंबई में उसको पानी पूरी बोलते हैं, राइट? हम यहाँ दिल्ली में उसको गोलगप्पे बोलते हैं, गोलगप्पे. तो पानी पूरी बेच रहा होता है, तो उसको पानी पूरी, अब कोरोना हो गया, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हो गया, उसके बाद 25 मार्च को लॉकडाउन हो गया. अब वो बेचारा रोज खाता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, रोज कमाता है, रोज खाता है. अब उसके लिए बड़ी दिक्कत हो गई. अब वो कैसे पैसा कमाए? लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया. हफ्ता काम चला, 10 दिन काम चला, 15 दिन काम चला, 20 दिन, महीना काम चला. अब उसके पास रोटी खाने तक के पैसे नहीं बचे. तो उसने ये सोचा कि यार मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी घर की रोटी चल सके. उसने ये सोचा, मुझे बेचना आता है और मेरी वाइफ को कपड़ा सिलना आता है. वो कहीं से कपड़ा जुगाड़ करके लेकर आया और उसने मास्क अपनी वाइफ से मास्क बनवाने स्टार्ट करे. उसकी वाइफ ने मास्क बनाए और वो उसी जगह पे जहां पर पानी पूरी बेचता था वहां जाके उसने मास्क बेचने स्टार्ट कर दिए. मतलब और पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, जिससे उसकी रोटी वापस से चलने लगी. मतलब एक पानी पूरी वाला भी समझता है कि समय के साथ में हमें अपनी सोच को, हमें अपने काम करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा. बिल्कुल इसी तरीके से हमें भी समय के साथ में अपनी सोच को, अपने काम करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा. जिन लोगों ने तो चेंज को अडेप्ट कर लिया उनके लिए लॉकडाउन एक अपॉर्चुनिटी बन गया, और जो लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार करते रहे उन लोगों के लिए कोरोना पीरियड, लॉकडाउन पीरियड एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया. बट अभी भी देर नहीं हुई है. अगर आप अभी भी अनलॉक को भी अगर आप अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना चाहते हो, देर नहीं हुई. आज हिंदुस्तान के अंदर 67% लोग या तो जॉब खो चुके हैं, या फिर उनकी जॉब स्टेक पे है, या फिर वो स्टैंड बाय मोड पे हैं.
हिंदुस्तान में 40% स्टार्टअप इस समय बंद हो चुके हैं या लगभग बंद होने की कगार पे हैं। बहुत सारे बिजनेसेस ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर। आप किस टाइम का वेट कर रहे हो? जिन लोगों को कोरोना हुआ है बहुत जल्दी वो लोग ठीक हो, हेल्दी रहें, सेफ रहें सब लोग। मेरी सब लोगों को यही एडवाइस है, यही सब लोगों के लिए विश है। लेकिन ये पीरियड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए गोल्डन पीरियड है। कुछ लोग बोलते थे पहले ऑफलाइन के टाइम पे कि 7 to 9 इवनिंग का जो टाइम होता था वो गोल्डन आवर्स होते थे हमारे बिजनेस के लिए, सब लोग घर पे मिलते हैं। लेकिन ये जो साल है ना, ये अब जो आपके लिए बचा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आई डोंट थिंक सो कोई ऑफलाइन सेमिनार होगा इन 5 महीने के अंदर। लेकिन इन 5 महीनों में ना लोग ऑलरेडी माइंडसेट प्रिपेयर करके बैठे हैं कि मेरे को जो भी करना है ऑनलाइन करना है, जो भी करना है ऑनलाइन करना है। ऐसे में अगर आप पूरा फोकस ऑनलाइन पे डाल देते हो ऑफलाइन से उठा के, तो मैं बता रहा हूं ये जो 5 महीने आपके गोल्डन पीरियड बन सकते हैं। मेरा और मेरी टीम का बिजनेस अप्रैल से लेकर जुलाई तक 3 गुना हो गया। मैंने क्या बोला? इनकम भी 3 गुना हो गई और बिजनेस भी 3 गुना हो गया। मेरा इस महीने का जो इनकम है, मेरा कुछ जीएसटी पेंडिंग था फॉरएवर में 2-3 महीने का, वो मिला के और मेरा पे आउट मिला के टोटल मेरे को जुलाई महीने में 13 लाख रुपए फॉरएवर से आए। 13 lakhs जस्ट 1 month, जुलाई। इनकम 3 गुना हो गया इसी लॉकडाउन पीरियड के दौरान। देखना आपको है कि आप इस समय को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करते हैं या आप केवल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते रहते हैं। सो इस तरीके से मेरा कुछ ग्रोथ हुआ। नाउ आई विल शो यू ग्रोथ एज अ टीम। दिस इज मी इन 2012। ये एक मेरा डिस्ट्रीब्यूटर था, ये हमारे बॉस हैं प्रिंस। आप सब लोग इनको जानते होंगे ऑलरेडी। तो दिस इज मी इन 2012, दिस इज मी इन 2014। शर्ट सेम तो नहीं है? नहीं, ये तो अलग है यार। 2014, दिस इज मी 2015। मेरी टीम में पहले 2 मैनेजर 5वें साल में आए थे। मैं 2010 में आया फॉरएवर में, 2013 में मैनेजर बना, पहले 2 मैनेजर 2015 में आए। फिर धीरे धीरे टीम की ग्रोथ हुई। ये 2017 का एक छोटा एक पिक्चर है, दुबई में एक 9,20,000 रुपए का चेयरमैन बोनस का चेक मिला। ये 2018 का टीम ग्रोथ है। कुछ टीम में 100-200 लोग, 500 लोग हो गए। ये भी रिसेंट मैंने प्रोग्राम किया था पर्सनल मेंटोरशिप का अपनी टीम के लिए। मेरी उस सेशन को 10,000 से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा था। 10,000 से ज्यादा लोगों ने। मतलब जो टीम का ग्रोथ आप देख रहे हैं, एक समय था 2012 में मैंने अकेले स्टार्ट किया था, आज टीम में हजारों लोग हैं। एंड आई स्टार्टेड अलोन विद फॉरएवर। बट रिमेंबर, Rome was not built in a day. It takes time. Growth as a mentor or as a trainer. When I started the business, 2014 में मैंने अपनी टीम की ट्रेनिंग्स करनी स्टार्ट करी। This is me. 2014 and 2015, you can see this. 2016, ये एक मंदिर हुआ करता था। मंदिर के ऊपर एक कमरा होता था खाली। उस कमरे में हम ऐसी प्लास्टिक की चेयर्स लगा के अपनी टीम के 15, 20, 40 लोगों को मीटिंग दिया करते थे हर बुधवार को और शनिवार को। दिस इज मी इन 2017। अभी क्या ना, हाव भाव बदल गया। जैसे जैसे पैसा आता है ना तो हाव भाव बदल जाता है, आपको भी बदल जाएगा। दिस इज मी इन कंपनीज ऑफिस, दिल्ली ऑफिस में 2018 का ये पिक्चर है। एंड दिस इज मी होस्टिंग अ प्रोग्राम है त्यागराज स्टेडियम, जहां 8-9 हजार लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने। वहां मैं एक प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ। एंड दिस इज मी इन 2020। मैंने अभी हाल ही में एक प्रोग्राम आईजीआई में, लॉकडाउन से पहले 1 या 7 मार्च को इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रोग्राम था फॉरएवर का, जहां 20,000 से ज्यादा लोग थे। खचाखच भरा हुआ था स्टेडियम, और वहां मैंने अपने कामयाबी के किस्से सुनाए थे। Guys, do you see? I mean, this is where I started. मेरे ख्याल से 5-7 लोग बैठे होंगे मेरे सामने जब 2014 में मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। और 2014 से लेकर अब तक 6 साल में मेरी ट्रेनिंग्स में 5 लाख से ज्यादा लोग बैठ चुके हैं।
5,000 से ज्यादा लोगों को मैं 1-to-1 पर्सनली कोच कर चुका हूं अपने सेशंस में, अपने कोचिंग सेशंस के अंदर. This is how I started and this is where I reached and this is just a beginning what I believe in forever. क्योंकि जो forever का potential है उसके अकॉर्डिंग ये कुछ भी नहीं है. Growth as a traveler. आपको पता है forever जो है फ्री इंसेंटिव्स आपको ऑफर करती है साल में 2 इंटरनेशनल और 1 डोमेस्टिक. ये पहली बार मैं साइमन सर से मिला था. मैंने साइमन सर से हाथ मिलाया था पहली बारी 2014 में, क्योंकि वहां मलेशिया में तो बहुत दूर थे ना स्टेज पे, तो मैं बस केवल दूर से देख रहा था. 2014 में मैंने इनको बिल्कुल पास से देखा और हाथ भी मिलाया. तो 2014 का ये पिक्चर है ताज पैलेस का, जब कंपनी का पहला रिट्रीट मैंने क्वालिफाई किया, मैनेजर रिट्रीट. और ये पिक्चर है आपके राइट हैंड साइड में, वेलकम टू लेक टाहो. ये 2014 का कैलिफोर्निया का पिक्चर है. अमेरिका में कंपनी ने एक ईगल मैनेजर का टूर किया था. गाइस टी शर्ट भी सेम है. वो मतलब उस समय ज्यादा पैसे नहीं होते थे बार बार कपड़े बदलने के. तो ये अगले साल का पिक्चर था 2015 का. तो अगेन आई हैव ट्रेवल्ड टू अमेरिका ऑलमोस्ट 7 टाइम्स आई गेस. तो और 15-20 कंट्रीज मैंने ट्रेवल करी हैं. सब फॉरएवर की देन है. ये 2014 का पिक्चर है रेक्स के ऑफिस का, एलोवेरा ऑफ अमेरिका. गाइस ये मैंने क्यों लगाया पिक्चर यहाँ पे? यू सी, दिस इज मी एंड माय वाइफ इन 2014 इन रेक्स's ऑफिस. दिस इज मी एंड माय वाइफ इन 2019 इन रेक्स's ऑफिस. सेम ऑफिस बट वी आर डिफरेंट. ये है फॉरएवर. केवल पैसा ही नहीं देता फॉरएवर आपको, पैसे के साथ साथ आपको जीना भी सिखा देता है. एंड दिस इज दीज आर फ्यू पिक्चर्स व्हिच वर क्लिक्ड इन 2019. ये लास वेगस में पिक्चर ली गई थी. ये न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के पास ली गई थी. ये शायद किसी हिल स्टेशन पे ली गई थी. ये फॉरएवर के जो एक अभी प्रोग्राम हुआ था 2018 में फिनिक्स में, ये वहां की पिक्चर है. ये एक स्पेन की पिक्चर है, इज माय सन अलोंग. एंड ये स्पेन, ये स्वीडन की एक पिक्चर, नहीं शायद पता नहीं स्वीडन है कि बार्सिलोना है, चलो जो भी है, गए थे मतलब. ये न्यूयॉर्क स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये वेगस की. ये अभी हम 19 में नाइग्रा फॉल्स गए थे, मी एंड माय वाइफ. I mean, life has become beautiful, to be very honest with you. It's all because of forever. And me, my growth as a car owner. When I came in forever, तो मेरे पास में ये थी कैलिबर, हुडी बाबा, हुडी बाबा, हुडी बाबा, हुडी बाबा वाली बाइक. Then 2014 में मैंने ये वरना गाड़ी खरीदी. और गाइस खाली मैं अकेला चेंज नहीं हुआ. You see this and you see this changed. You see this is one of my team managers. Look at his face once. Look at this face once. It's not just me who grew in the business. It's my team as well. जैसे मैं बदला, मेरी टीम भी बदली. ये 2016 का एक पिक्चर है. और मैंने उस समय एक सेडान परचेस किया, लग्जरी सेडान परचेस किया. ये 2018 का पिक्चर है. और जब मैंने एक मर्सिडीज बेंज अपने आप को गिफ्ट किया, और फिर धीरे धीरे मैं फ्रंट सीट, ड्राइवर सीट से बैक सीट पे आ गया मर्सिडीज की. तो खैर अभी तो ड्राइवर आना बंद हो गया क्योंकि लॉकडाउन हो गया, अभी कहीं जाना ही नहीं है. ये मेरी टीम के कुछ लोग हैं. ये मेरी टीम में पहली गाड़ी आई थी होंडा अमेज 2016 में. उसके बाद तो अभी मेरी टीम में लगभग 40 के करीब लोग हैं जो ऑलरेडी कार प्लान क्वालिफाई कर चुके हैं. ये कुछ ऑफिसर्स मैंने लिए. धीरे धीरे ऑफिस पहले छोटा था, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा होता चला गया. माय ग्रोथ एज अ हाउस ओनर. मैं पहले जब अपने घर की बालकनी से देखता था तो मुझे कुछ ऐसा नजारा नजर आता था. जब मैं बालकनी से देख रहा हूँ ऐसे नीचे, तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है. अभी जब मैं अपनी बालकनी से देख रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है. ऐसे दिख रहा है ऐसा. हाँ ऐसे ही है यार, कमाल. ऐसे ही ऐसा ही है. मैनेजर रिट्रीट. सो अभी ये ताज फलकनुमा पैलेस में एक कंपनी का रिट्रीट हुआ था. चलो छोड़ो, ये क्या दिखाना, ये मतलब ठीक है. ऑल राइट. ओके, सो दिस इज हाउ माय होल लाइफ चेंज्ड बिकॉज ऑफ फॉरएवर. अब मैंने अपनी इस जिंदगी को बदलने के लिए मैंने किया क्या? मेरा मानना ये है कि अगर आपको फॉरएवर में कामयाब होना है ना, आपको 4 कोर का ध्यान रखना है. 4 कोर. वो 4 कोर क्या है? सबसे पहला लीड जनरेशन. ध्यान से समझना. सबसे पहला मैं आपको इस सेशन के एंड में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं, मतलब
आपका बिजनेस, मैं आपको गारंटी तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूं कि आज आपका बिजनेस जो कुछ भी है, इन 4 कोर को अगर आपने समझ लिया तो अगले 3 से 4 महीने के अंदर आपका जो बिजनेस है वो डबल हो सकता है। इसीलिए 15-20 मिनट ध्यान से एकदम अटेंटिवली इस सेशन को अटेंड करना, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो मेरी जिंदगी में बदलाव आए उसके लिए मैंने किया क्या। अगर आपने ये समझ लिया, मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूं, अगर आप वो काम जो मैं अब आपको करने के लिए बताऊंगा अगले 15 से 20 मिनट, अगर आपने वो काम कर लिए, आपका बिजनेस 3 से 4 महीने में डबल हो सकता है। अब ध्यान से समझो 4 कोर। पहली चीज लीड जनरेशन। हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइम चीज है लीड जनरेशन। मैं कह रहा हूं आप एक 10 लाख रुपए लगा के कपड़ों का शोरूम खोल लो, 20 लाख लगा के खोल लो, 50 लाख लगा के खोल लो, 1 करोड़ लगा के खोल लो, या 10 करोड़ लगा के खोल लो, अगर उस कपड़े के शोरूम में कपड़ा ही नहीं होगा तो क्या कुछ सेल होगी? यस और नो? सेल नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे बिजनेस में जो लीड्स है ना, वो हमारा रॉ मटेरियल है। तो हमारे बिजनेस में आपको क्या करना होता है, जब कोई प्रोस्पेक्ट नया आता है तो सबसे पहले आपको उसकी हॉट मार्केट में काम करने के लिए आपको लिस्ट बनवानी सिखानी होती है। सबसे पहले उसकी लिस्ट बनवाओ और उसके बाद उसको डेली बेसिस पे 15 से 20, मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं मेरी कामयाबी का, ध्यान से समझो, आपको 15 से 20 उसको लीड्स जनरेट करनी सिखानी है। मेरा मानना यह है कि अगर आप देखो, ये जो हॉट मार्केट की लिस्ट है ना, ये तो नेट प्रैक्टिस है, ये तो टुक टुक है, नेट प्रैक्टिस। कुछ अच्छे लोग काम के मिल भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हॉट मार्केट की लिस्ट के साथ साथ आपको कोल्ड मार्केट में अपने विंग्स को फैलाना स्टार्ट कर देना है तुरंत, और डेली बेसिस पे 15 से 20 लीड्स आपको जनरेट करनी सीखनी है। फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से, वर्क इंडिया के माध्यम से, क्विकर के माध्यम से, OLX के माध्यम से। बहुत सारे तरीके हैं जहां पर आप अपनी फ्री एड भी चला सकते हो, पेड एड भी चला सकते हो, और ऑर्गेनिकली भी डायरेक्ट मैसेज करके आप लोगों से बात करके लीड जनरेट कर सकते हो। बट मुद्दे की बात यह है कि डेली बेसिस पे आपकी 15 से 20 लीड आपके पास आनी चाहिए। अब आप ये सोचो, मेरा जो मानना ये है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है पिछले 4 महीने का ऑनलाइन काम करने का, टोटली ऑनलाइन बिजनेस में इट्स ऑल अ नंबर गेम, इट्स ऑल अ नंबर गेम। अगर आप डेली बेसिस पे 20 लोगों से 20 लीड जनरेट कर रहे हो, तो आई एम श्योर 20 में से 15 लोगों के साथ आपकी बात हो जाएगी, अगर वो क्वालिटी लीड्स हैं तो। क्वालिटी नहीं है तो 10 से बात हो जाएगी। मैं कह रहा हूं आपकी अगर 15 लोगों से, चलो छोड़ो, आपकी 10 लोगों से भी बात हुई, आपने महीने में 300 लोगों से फोन पर बात कर ली। अगर 300 लोगों से आप फोन पर बात करके उनको अपनी मीटिंग को अटेंड करा देते हो, मान लो 300 में से 150 लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए आए, और 150 में से 100 ने ही आपको रेस्पॉन्स किया, तो जिन 100 ने आपको रेस्पॉन्स किया 300 में से, क्या लगता है उन 100 में से 4 से 5 लोगों को एएस नहीं करा पाओगे? क्या 100 में से 4 से 5 लोगों को एएस नहीं करा पाओगे? अब सोचो, अगर आप सुपरवाइजर लेवल पर हो, कितने यहाँ सुपरवाइजर है? रेज योर हैंड इफ देयर इज एनी सुपरवाइजर हियर, रेज योर हैंड अगर कुछ लोग सुपरवाइजर्स हैं यहाँ पे तो। ऑलराइट, ओके, गुड। अगर आप सुपरवाइजर हो और आपकी टीम में मान लो 5 लोग हैं, जो काम अगर 100 रेस्पॉन्स आपको आ रहे हैं और आपके 5 टीम मेंबर्स को भी 100 रेस्पॉन्स आ रहे हैं 300 लीड में से, तो टोटल रेस्पॉन्स 500 हो गए। कितने हो गए? 500 रेस्पॉन्स हो गए। अगर 100 में से 5 एएस बन रहे हैं, तो 600 में से कितने एएस बनेंगे? कितने एएस बनेंगे? 30 एएस। कितनी सीसी होगी 2 सीसी के अकॉर्डिंग? 60। और यही अगले महीने होगा तो केवल 2 महीने में मैनेजर हो सकता है, सिर्फ 2 महीने में मैनेजर हो सकता है। इट्स ऑल अ नंबर गेम। मेरी टीम में एक व्यक्ति है, वो मई में आया,
फॉर्म भरा मई 3 या 4 तारीख को, पहले महीने उसने 11 AS बनाए, पहले महीने 11 AS। पहले महीने का चेक उसका 66,000 रुपए का था, पहले महीने का, टैक्स वैक्स काटने के बाद लगभग 60,000 के करीब उसको आया, पहले महीने का पे आउट। 11 AS बनाए उसने। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस में जितनी फास्ट आप काम करोगे उतने फास्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं ना, मैं मैनेजर बना 3 साल में, वो जमाना अलग था। आज आपको मैनेजर बनने के लिए 3 साल लगाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा टीम के साथ स्ट्रॉन्ग मैनेजर बनने के लिए 4 से 6 महीने बहुत है। मैंने बोला ना माइंडसेट, आपको अगर माइंड में ये रहेगा कि मुझे मैनेजर बनना है 12 महीने में, 18 महीने में, 24 महीने में, तो आप 24 महीनों में ही बनोगे। अगर मैं आपको माइंडसेट दूंगा कि भाई आपको मैनेजर बनना है 4 महीने में, तो आप 4 महीने में नहीं बनोगे तो 5 महीने में बन जाओगे। कम टाइम लेके चलो, ज्यादा मेहनत करो। कम टाइम लेके चलो, ज्यादा मेहनत करो, जल्दी कामयाबी को अचीव करो। क्योंकि पहले के जमाने में कछुआ और खरगोश की रेस में कछुआ जीतता था, आज के जमाने में खरगोश ही जीतता है। एक बड़ी अच्छी बात मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी, पहले के जमाने में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी, आज के जमाने में तेज मछली धीमी मछली को खा जाती है। लेट मी से इट अगेन, पहले के जमाने में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी, आज के जमाने में तेज मछली धीमी मछली को खा जाती है। नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू वॉक फास्ट, स्पीड अप कर लो अपने काम को तरीके से। पहला काम करो लीड जनरेशन, दूसरा काम करो इनविटेशन। अब इनविटेशन आप बोलोगे यार ये कौन सा नई बात है, हमें तो पता ही होगा। आपको ना एग्जैक्ट वर्ड्स पता होने चाहिए, और केवल आपको नहीं, आपकी टीम के लोग क्यों नेगेटिव होते हैं, क्योंकि जब वो आते हैं एएस बनने के बाद काम स्टार्ट करते हैं, तो उड़ी उड़ी बातों से उनको पता चलता है कि कैसे उनको इनवाइट करना है। आपको अपनी टीम को एग्जैक्ट वो रिकॉर्डिंग्स देनी है, आपको वो एग्जैक्ट वर्ड्स बताने हैं, आपको वो एग्जैक्ट ऑब्जेक्शंस जो आते हैं उनको हैंडल करने के तरीके बताने हैं, और वो हैंडल करने की एग्जैक्ट आपको लाइंस बतानी है। आपके पास में एग्जैक्ट वर्ड्स होने चाहिए इनविटेशन के लिए, कि ये बोल के 3 मिनट में इनविटेशन खत्म होना चाहिए, ये बोलेंगे तो 4 मिनट में खत्म होना चाहिए, ये क्वेश्चन आएगा तो 5 मिनट में खत्म होना चाहिए। ये आपका ग्राउंड वर्क है काम को स्टार्ट करने से पहले का, और अपनी टीम को काम स्टार्ट कराने से पहले का। इनविटेशन मत करो, इफेक्टिव इनविटेशन करो। इनविटेशन तो सबको करना आता है, इफेक्टिव इनविटेशन आपको सीखना है। हो सकता है साइमन सर आपको यकीनन सिखाते ही होंगे, बट आपको उनसे और ज्यादा टच में रहना है, ताकि सर आपको अच्छे तरीके से इनविटेशन की हर एक चीज की डेप्थ को आपको बता सके, और आप लोगों को तरीके से इनविटेशन कर सके। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जो तीसरा काम है हमारा, वो है फॉलो अप। ये 3 काम ना आपके लिए आपका अपलाइन नहीं कर सकता। पहला लीड जनरेशन आपका अपलाइन नहीं करेगा, आपका अपलाइन आपके लिए प्रेजेंटेशंस कर देगा, अपलाइन आपके लिए इनविटेशन नहीं कर सकता। तीसरा काम है फॉलो अप, आपका अपलाइन आपके लिए फॉलो अप लिमिटेड कर सकता है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो सकती हैं, बट असल में बीड़ा आपको उठाना है। द मोस्ट डिपेंडेंट पीपल आर द लीस्ट सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, and least dependent people are the most successful people in network marketing business. So आपको जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट बनना है, आपको अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। बिजनेस आपका है, आपको सीखना है, आपको बीड़ा उठाना है अपनी कामयाबी का। There is no one who is responsible for your success. It is only you who is responsible for your success or failure, both. तो आपको तीसरा काम करना है फॉलो अप। फॉलो अप में आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आज अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो गई, इस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बाद मेरे को कौन से वीडियोस भेजने हैं, क्या कॉल करके उसको बोलना है, कैसे रेपो बिल्ड करनी है, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या एडिफिकेशन करनी है अगले इवेंट की,
कैसे स्पीकर की एडिफिकेशन करनी है उसको अगले इवेंट में बुलाने के लिए, एक एक वर्ड आपको रटा हुआ होना चाहिए। हम बिजनेस में लकीर के फकीर नहीं बन सकते, हमें अपने कॉमन सेंस भी यूज करनी पड़ती है। बट जब आप नए हो, अगर आप वर्ड बाय वर्ड शुरुआत में इनविटेशन को, फॉलो अप को सीख लोगे ना, तो शुरुआत में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको रिजेक्शंस कम मिलेंगे। और धीरे धीरे 3-4 महीने 5 महीने में जब कामयाब होने लगोगे, पैसे आने लगेंगे, फिर तो आप अपने तरीके खुद भी निकाल सकते हो। आज मेरी टीम में बहुत सारे लोग मेरे को कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो मुझे नहीं पता, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीख सीख के अपग्रेड होता रहता हूँ। तो फॉलो अप आपको एग्जैक्ट, आपको मीटिंग के बाद कौन सा वीडियो भेजना है, मीटिंग के बाद आपको क्या फॉलो अप लाइंस बोलनी है, कैसे आपको रेपो बिल्ड करना है कॉल पे, कैसे आपको कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, ये एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब अगले सेशन में वो व्यक्ति आ गया, उस अगले सेशन के बाद, अच्छा अगले फॉलो अप और अगले सेशन के बीच में क्या मैसेज टाइप करके उसको फॉलो अप करना है, ये भी आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अगले सेशन के बाद कौन से वीडियोस भेजने हैं, अगले सेशन के बाद कॉल पे क्या बात करनी है, अगले सेशन के बाद किस तरीके से आपको उसको फॉलो अप करना है, एक एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। 3 चीज मैंने आपको बताई, मैंने बोला था ना इस सेशन के एंड तक मैं आपको कुछ 4 चीजें बता दूंगा, 3 बताई है मैंने अभी आपको, जिससे आपको ये एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस तरीके से, चौथा बाकी है अभी, किस तरीके से 3 से 4 महीने के अंदर आप अपने बिजनेस को डबल कर सकते हो। लीड जनरेशन करना, इनविटेशन करना, फॉलो अप करना, अगर ये 3 काम अगर आप करते हो, चौथी चीज है, बता दूं आपको, रेज योर हैंड इफ यू वांट टू नो इट, रेज योर हैंड इफ यू वांट टू नो इट। If I don't get 295 hands, I won't tell you. I won't tell you if I don't get 295 hands. Okay. That's it. All right, wonderful. Good. चौथी चीज है कंसिस्टेंसी। एक व्यक्ति ने, मार्क मुडोर्क ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज हिडन इन द डेली रूटीन। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज हिडन इन द डेली रूटीन। आपका जो डेली रूटीन है ना, जैसे आप नौकरी पे जाते हो, आप दुकानदारी करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आपको मालूम है कि आपको सुबह से लेकर रात तक एग्जैक्ट किस टाइम पे क्या क्या काम करना है। सिमिलरली आपको फॉरएवर में पता होना चाहिए कि सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले एग्जैक्ट आपको क्या काम करना है। जब आपको ये पहले से स्टेप बाय स्टेप मालूम होगा और आपकी टीम को मालूम होगा स्टेप बाय स्टेप की आपको उन लोगों को क्या करना है, तो उन लोगों के लिए ये 3 काम करने आसान हो जाएंगे। बहुत से लोग, आज बहुत सारे लोगों ने मेरी मीटिंग अटेंड करी है, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए होंगे, कल से स्टार्ट करते हैं लीड जनरेशन, भाई साहब कल से इनविटेशन लग गए, फॉलो अप में लग गए। कितने दिन चलेगा ये? 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद सारा मोटिवेशन डाउन। ये बिजनेस है ना, एक्शन टेकर्स का बिजनेस है। ये बिजनेस है ना, सेल्फ मोटिवेटेड लोगों का बिजनेस है। हमें आपको मोटिवेट नहीं करना चाहिए। अरे हमें कौन मोटिवेट कर रहा है? आप लोगों को खुद से मोटिवेट होना है। हमें पता है क्या, हाँ हमें कोई मोटिवेट कर रहा है, हमें पता है क्या मोटिवेट करता है। इस फोन में जब 15 तारीख को मैसेज आता है ना, हमें वो मोटिवेट करता है। आपको ऐसा मोटिवेशन चाहिए ना, तो जो 4 काम मैंने आपको बताए ना, उनको करना स्टार्ट कर दो। आप भी 15 को ऐसे मोटिवेट होगे ना, बाकी 30 दिन, अगली 15 तक बिल्कुल डेली 20 लीड जनरेशन, डेली 10 to 15 invitations, daily presentations, daily follow-up. Keep it consistent. The idea is to keep it consistent. Many people, they get motivated and they do it for some time and then they drop it. That's not the key to success. The real key to success is consistency. आज फॉरएवर में जो लोग बेहद कामयाब हैं, चाहे वो मेरी टीम में, किसी भी व्यक्ति की टीम में या साइमन सर की टीम में, जो भी लोग आज बहुत ज्यादा जो कामयाब है, रीजन है कंसिस्टेंसी। अरे भैया, पत्थर के ऊपर भी पानी की लगातार बूंद गिरती रहेगी तो पत्थर में भी गड्ढा हो जाएगा।
आपको एक पौधे को उगाना है। अब अगर आप उस पौधे में एक ही दिन 50 लीटर पानी डाल दोगे तो क्या होगा, वो पौधा जो है मर जाएगा। लेकिन अगर डेली थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहोगे, डेली उसको थोड़ा थोड़ा नर्चर करोगे, तो एक दिन वो बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। हमारा बिजनेस भी वही है, इट डजंट ग्रो ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम, इट विल गिव यू चैलेंजेस, आपके राह में चैलेंजेस आएंगे, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप ट्रेनिंग सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हो, देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू टू बिकम सक्सेसफुल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। You guys understand this. I am so proud to be a part of Forever Living Products, and you guys should be so proud to be a part of Forever Living Products. I tell you why. इस टाइम पे जो बहुत सारे लोग इस पेंडेमिक में नौकरियां नहीं है, बिजनेस बंद है, खत्म है, होपलेस हैं, ऐसे टाइम पे हमारी टीम में, हमारे फॉरएवर इंडिया के अंदर हजारों लोग पैसा कमा रहे हैं। हमारा नया एएस पैसा कमा रहा है। बहुत सारी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के टॉप लीडर्स जो है ना, स्टैंड बाय पे हैं, 3 महीने से पैसा नहीं आया। हमारा नया एएस जो जुलाई में रिक्रूट हुआ है ना, उसको भी 15 अगस्त को पैसा आ जाएगा। You should be proud to be associated with Forever Living Products. We are so blessed to be a part of Forever Living Products. So just do 4 things and you can achieve everything what I have achieved, and what other people who are successful in India, Forever India, what they have achieved, you can also achieve the same if you do those 4 things: lead generation, invitation, follow up, and you got to be consistent in all these three things. That's the 4th thing. That's the key to be successful in Forever Living Products. And I wish you great luck. You guys are awesome, and I'm sure you would double your business if you do all these things. Thank you very much. God bless you all. अरे बाबा, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। आई मीन इतना अच्छा था आपका सेमिनार। लेट मी कम बैक टू द स्क्रीन, सॉरी। Sure. सुपर जितेन, इनफैक्ट मैं आपका जो जुना फोटो देखा ना, वेरी वेरी फ्रैंकली आपस की बात है, आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज। इनफैक्ट मेरे को भी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ कि भाई ये इसको मैं किधर देखा हूँ। बट आई मीन द डेवलपमेंट फ्रॉम बिफोर टू नाउ इज ट्रेमेंडस। I mean, Thank you very much. Thank you very much. Mind blowing, guys, and fantastic. So we really appreciate your time you gave us. बहुत अच्छा था कि आपने टाइम दिया। और यू नो, मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ, जितेन को मैंने 1 हफ्ता पहले फोन नहीं किया, 2 हफ्ता पहले फोन नहीं किया। I just called him very casually and I told him, my boy, अपना ग्रुप है, please, and your team is doing very well, come. He didn't say time, he didn't say anything. I said, you decide when, and he told me, go ahead, I'm coming. तो इतना प्यार है, और यही तो हमारा फॉरएवर में प्यार रहता है, और हम पूरे एक्सपांड करते हैं। हम इनफैक्ट प्रिंस इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। प्रिंस हमारा एक सेमिनार में भी आए थे, एंड ही वाज वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर्स, सो ही इज फैंटास्टिक। तो गाइस, वी रियली लव यू जितेन अरोड़ा, एंड वी रियली एंजॉयड योर स्पीच। आई थिंक यू कुड बिकम द नेक्स्ट Rolf Kip from India. Thank you very much, and I would definitely expect someone to become Rolf Kip from your team as well. Yes, why not? Why not? We've got very good. In fact, we have Rajiv. Let's see if I can get Rajiv there. Rajiv is one of our top trainers from. I'll try to get him. Wait, I just muted him. So if I'll get him right now, so at least he can speak a word on Meta. Yes. Yes, I bought Rajiv also because अगर वो कुछ बात नहीं करेगा ना, उसको रात को नींद नहीं आएगा। Fantastic. ये ट्रेनिंग सुनने के बाद तो नींद ऐसे ही नहीं आएगी। Fantastic, sir. Thank you for sharing all that. Thank you very much. My pleasure is all mine. Thank you very much. And especially your positive attitude and जो forever जो offer करती है, I mean जो power और जो, you know, I love the power. Amazing energy, amazing energy. Superb. So thanks a lot again. I would like to thank you for my heart, and please give my love to your full family. Yeah. Definitely. Thank you very much. All right. Thank you. Thank Bye. you, Good night. Guys, I would request anybody whoever got in touch with you regarding this video, please get in touch with them. They are your sponsors. So whoever's invited you for the seminar,
they are your service center, they are the people who are going to service you. वो मतलब मैं हिंदी में बोलूंगा कि जो भी आपको ये सेमिनार में बुलाया है, आप वही उनके पास whoever is invited उनके पास जाओ, उनको फोन करो और ये बिजनेस कैसा करने का, किस तरीके से करना है, क्योंकि इसकी जैसी कोई कंपनी इंडिया में जो वर्ल्ड में नहीं है, वो तो इंडिया में बोला तो वर्ल्ड में नहीं है। कोई भी कंपनी इस टाइम पे आपको दिवाली बोनस नहीं देने वाली है, हमारा कंपनी ने दिया है। तो उसका पूरा डिटेल्स, प्लीज गेट इन टच विद द पर्सन हु इंट्रोड्यूस यू, एंड आई गारंटी यू सर, वी आर द बेस्ट एंड वी विल रॉक द शो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक्स अ लॉट गाइज, थैंक यू।